ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅਡੋਲ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਜਿਮ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈੜੀ ਬੀ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੀ ਟਾਊਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਬੀ ਟਾਊਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਮ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆਇਆ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ weight ਹੀ 42 kg ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐम्बैरेस ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਹੀ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਹੀ 42 kg ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ मैं जब जिम स्टार्ट की तो सारे कह रहे हैं कि तेरी हड्डियां टूट जाएंगी, तू कहाँ लकड़ियों पे जोर लगा रहा है, तेरे से कुछ नहीं होगा। पर मैं एक गल सोची, मेरी मम्मी ने मैनू बड़ा मोटिवेट किया कि पुत तू कर, मैं तेरे नाल हाँ। उन्होंने मैनू डाइट बना के दी मेरे लिए। वो सप्लीमेंट के पैसे इकट्ठे करते हैं मम्मी, तो मैनू सप्लीमेंट के पैसे देंगे हैं। उन्होंने कदे ये नहीं बोलिया पुत तू ये ना खा वो ना खा, मैनू सपोर्ट किया। ठीक है। तो 10th क्लास तो मैं 12th क्लास तक बरेली पढ़िया। तो 12th क्लास तो जो मेरी फेयरवैल हुई, 4 साल मैं लगातार एक्सरसाइज की, विच मैं छड्डती ही एक्सरसाइज बोर्ड के पेपर करके। तो जो मैं 12th क्लास में मेरी फेयरवैल ही, उत्थे एक लड़के ने मैनू ऑन स्टेज बुली किया ही, मैं ना डिस्कलोज नहीं कराँगा। तो उदों वो एक्सरसाइज करता ही, वो बॉडी बहुत वधिया ही। तो बुली किया ही कि मतलब ऑन स्टेज मैनू बुली किया ही फेयरवैल ते कि मैं जिवें टीचर पूछते नहीं ने, प्रिंसीपल पूछते हैं व्हाट्स योर हॉबी, तो उदों मतलब बंदा गर्म ही, मैं बोलता ही मैं बॉडी बिल्डर बनांगा या मैं जिम करदा। तो मतलब मेरा एम है कि मैं बॉडी बिल्डर बना। तो वो 4-5 मुंडिया ने इकट्ठे होके ताली मारी, वो हसन लग गए मतलब स्टेज पे कि यार तू क्या बनेगा बॉडी बिल्डर। बस उदों ही मेरे दिल चो गल पिंच हो गई कि मैं जयदीप हुण तू कुछ करना है, अपने लिए नहीं, इन्हों दिखाना है तू। मैं वो नहीं कि किसी की जलन होए, मेरे कोई जलन नहीं, सारा गुरु महाराज का इतना वधिया है। जो किया मम्मी दे करके है मैं जो भी हाँ अज। उहदे बाद मैं सोच लिया जयदीप हुण बस इधरों तू अपनी ये लाइन स्टार्ट कर दे। उहदे बाद मैंने अपना फर्स्ट कोर्स किया स्टार्ट ECNA चंडीगढ़ तो मैं अपना कोर्स किया। फिर मैं अपने एक्सपेंस कढ़न लई इत्थे बैड़ी भी पर्सनल ट्रेनिंग दिंदा रहा। तो भाई पर मैं अपने कपड़े ते शूज़ ते पैसे बिल्कुल नहीं लाए, अपना पैसे इकट्ठे करता ही, पापा देंदे हैं या जिधरों मिल गए मैं उहदे तो सप्लीमेंट बाय करदा। तुहानूं आया भी मोटिवेशन कह दो या कह दो भी एक ना अंदर दा उबाल सीगा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਗਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ECNA ਕੋਰਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਹਨ ਗੁਰਦੇਸ਼ ਮਾਨ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਹਨ ਨਿਤਿਨ ਰਾਘਵ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਪ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਤਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁਣੇ, ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਮੇਨ ਵੀ 18 19 ਜਾਂ 20 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਹੜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਿਹੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਹੜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਹੁਣ ਬੀ ਟਾਊਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਬੀ ਟਾਊਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਕੀ ਜਿਮ ਹੈ ਬੀ ਟਾਊਨ ਵਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹਿੜੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਥੈਲੇ 'ਚ ਬੀਕਾਸੋਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਲਿਮਸੀ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹਨ ਰਫੀ ਸਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੋਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬੜੇ ਅਟੈਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਨੌਲੇਜ ਕਰਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਤ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ बैठ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ कि बेटा तू जे यहाँ पे जो करना है वो कर ले। तो मेरे दादा की टाइम की दादा ने ले रखा था यहाँ पे एक प्लॉट ले रखा था। पापा ने कहा तुझे जो यहाँ पे करना है वो तू यहाँ पे कर ले। तो उन्होंने पापा ने कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, बेचारों ने इतनी मेहनत करके जो अब तक जोड़ा होगा सारा उन्होंने लगा दिया जिम बनाने के लिए। भाई साडा जिम खड़ा हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गई, ਉਹਦੇ ਤੇ 30-35 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਬਹਿੜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਸਟ मोमेंट ਤੇ ਜਦੋਂ बिल्डिंग बन गई, जब हमारी बिल्डिंग बन गई उसके बाद में हमारा ये हुआ था कि हम इसे रेंट पे दे देंगे। वहाँ मेरा सपना टूट गया था कि क्योंकि हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं था, बिल्कुल भी बजट नहीं था। जो लोग ये सोचते हैं बहड़ी में कि ये बहुत रिच है, तो मैं खुल के ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हमने सारा जो हमारे पास हार्ड कैश था हमने सारा अपनी बिल्डिंग पे लगा दिया था। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, लोग देखते होंगे स्टेटस पे हमेशा अपनी मम्मी का डालता रहता है, मेरी मम्मी ने अपना सारा सोना, कह रही थी कि ये बेच दो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा लड़के को स्टैंड होना है। तो वो सारा सोना जितना भी मेरी मम्मी का गोल्ड था उन्होंने गिरवी रखा बैंक पे। हमने पाजी उस टाइम पे लोन लिया, गोल्ड लोन। फिर पाजी हम मशीनें लाए, और आप झूठ मानोगे इस बात को, जिस दिन हमारे जिम की ओपनिंग थी 13 दिसंबर 2021 की बात है, मेरे पास पाजी पहनने के लिए ट्रैक सूट नहीं था ठंडों में। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पहनने को ट्रैक सूट नहीं था। तो मेरे को, मेरा एक फ्रेंड है सिद्धार्थ, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है, सिद्धार्थ अदलखा, संत बोलते हैं उसे। उस बेचारे ने मेरे को ट्रैक सूट दिलाया, लेके गया मेरे को। फिर उसी दिन हमें याद आया कि यार जिम पे सप्लीमेंट भी रखना है, क्योंकि नए नए बंदे आएंगे, ओपनिंग होती है। उसके पापा ने मेरे को 20,000 रुपये दिए थे कि तू अपना सप्लीमेंट ले आ। तो उन बंदों को भैया हम पाजी हम क्यों याद ना करें जिन्होंने हमारी हार्ड टाइम में हेल्प करी है। अच्छा, ये तो चलो आपका ये होगा भी आपने सेटअप कैसे लगाया, लेकिन अब करंटली अब सारा कुछ बढ़िया हो गया ना, उसके बाद ना सेटअप भी लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है, बंदा सीख लेता है मान लो, उसके बाद सेटअप भी कर लेता है, बिजनेस स्टैंड हो गया, सब कुछ आ गया। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल आती है उसको रन करना। हाँ जी, उस पर टाइम लगाना, उसका मान लो अपना सिस्टम सारा ही मैनेज करना, अपनी फैमिली को मैनेज करना, अपना टाइम पीरियड, अपने शौक, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने क्लाइंट, सारा कुछ देखना होता है। फिर वो आपके पास कितने क्लाइंट है अभी जिम पर? भाजी ये रहता है जिमें ये भी सीजनल काम है।
ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ 'ਚ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 100 ਸਵਾ 100 ਤੇ ਪੀਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दिवाली तो होली तक, दिवाली से होली तक हमारा काम रहता है हल्का, मतलब आप मान के चलो नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक। मार्च के बाद हमारा पीक चढ़ता है। उसके पीछे भी मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखते हैं कि गर्मियों में लड़के हाफ टी शर्ट पहनते हैं तो उनका गर्म खून खोलता है, अरे हमारे बाइसेप दिखे, चेस्ट दिखे। ठंडों में उन्होंने फुल कपड़े पहनने हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सोचते हैं हम कहाँ ही बॉडी पे खर्च करेंगे। तो मार्च के बाद जैसे ही हाफ कपड़े पहनते हैं तो लड़के एकदम घुसते हैं जिमों में। ये चलो ये तो अच्छा है, लेकिन ना मैं एक चीज़ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ 4 ਮੈਡਲ ਉਹ ਮੈਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਬਾਅਦ ਐਸਟਰੋਇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਾ 20 ਲੀਟਰ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ mg ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਡਾਈਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆ ਕਾਰਬਸ, ਵਾਟ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਾਟ ਆ ਫੈਟਸ, ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ MACRO, ਮੈਕਰੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। कास्ट बोले तो राइस हो गया, पोटैटो हो गया, फैट हो गया, आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया। प्रोटीन तो ही समझ सकते हो, चिकन, अंडा, वेज, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रीएंट्स भाई वो ने जिवें अपना डाइट तो पूरा नहीं कर पाते। जिवें हो गया ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल, मल्टीविटामिन हो गई। हाँ जी, तो ये बंदे यूज करते हैं ताकि उन्होंने बॉडी ਲਈ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਨਲੀ ਵੂਮਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਕੱਟ बोलते हैं साढ़े जॉइंट, मतलब जॉइंट्स, गोडे मतलब जॉइंट्स कट बोलते हैं हमारे। तो बंदे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले लिखता है विटामिन D3 60,000 IU या कैल्शियम लिखता है। तो बंदा जब परेशान होता है तभी डॉक्टर के पास भागता है और वो लिखता वही है, कैल्शियम और विटामिन D3। तो क्यों ना हम पहले से उसे अपने डाइट में लें। क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन, आपके दोनों भाई बाहर रहते हैं मुझे पता है, जैसे कि इटली में रहते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ की डाइट में, इंडियन डाइट में और बाहर की डाइट में बहुत फर्क है। सबसे मेन तो ऑर्गेनिक सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ की डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, पेस्टिसाइड्स। आपकी खेती भी है, खेती में क्या है कि आपने देखा होगा ज्यादा ग्रोथ के लिए, यील्ड के लिए लोग आजकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। बाहर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मसाले भी बहुत यूज होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस चीज में। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਗੇਮ ਖੇਡਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਰਿयलिटी ਦੱਸ ਰਿਹਾ। जो भी लड़के मेरे क्लाइंट, कई लोग पंजाबी नहीं समझ रहे होंगे तो मैं हिंदी में बोलूंगा। हाँ कोई नहीं, मैं पहले क्या मल्टी लैंग्वेज हाँ जी, हाँ जी। जो भी लड़के जो इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कि नेटी नेचुरल बॉडी बिल्डर और वो कंपटीशन खेलने होते हैं, तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ वो पूरा फेक है। सब एस्ट्रॉइड लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, मेरा क्लाइंट भी लेता है, पर मेरे जिम में आज तक मैंने किसी को एस्ट्रॉइड नहीं दिया। मेरा क्लाइंट विशाल लेता है क्योंकि वो मेरे साथ ही रहता है। रीज़न क्योंकि उसको, मेरे को उसके सारे प्रोटोकॉल पता है कि मैंने उसका अब क्या चलवाया क्या नहीं चलवाया। और दूसरी बात मैं बीच में ये बोलना चाहूँगा, कभी भी किसी भी कोच के आप अंडर में रहो, कम से कम 1 साल उसे इसलिए दो क्योंकि उस टीचर को पता होगा कि इसको दिक्कतें क्या थी शुरू में, मैंने इसको क्या मेडिसिन चलवाई है, क्या डाइट रखी है। अब आप एक दिन इसके पास रहे, एक दिन इसके पास रहे, तो उसको क्या पता होगा कि आपको क्या लगवाया, कितने mg क्या सामान चलाया। तो आपने देखा होगा लपरीत भैया, लोग 1 महीना मेरे जिम में आए,
एक महीना कहीं और गए। ये बहुत बड़ी इंडियन मेंटेलिटी गंदगी है। ये आपने ना एक बार इशू आपने ही बताया, मेरे एक ना और जानने वाले आए थे जिम वाले, तो उन्होंने भी ये रीज़न मेरे को सामने रखा। मैंने कहा भी कैसे बिजनेस है ना, कि मेरा बिजनेस है, पूछता है बंदा कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पूछता है भैया कैसा तुम्हारा कैसा है, तो बोला यार बढ़िया है लेकिन ना थोड़ा फ्रॉडबाजी होती है ना, वो गुस्सा आता है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि यार बंदा नॉर्मली जब ज्वाइन करता है ना जिम, नया क्लाइंट, तो हफ्ता 10 दिन कोई फीस वूस मांगता नहीं है, अभी जा कोई बात नहीं यार। तो अब बहेड़ी में कह रहे हैं भी मेरे ख्याल 20 जिम होंगे, 15-20 जिम। 20 तो नहीं भाई, 10 ते मान के चलो। हाँ चलो 10 तानू ज्यादा नॉलेज है। हाँ जी 10। तो उसके बाद में वो 10 दिन में मान लो भी अगर डिवाइड करेगा 10-10 दिन, पाजी ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये चल रहा है भैड़ी में। लड़कों के मैं नाम गिनवा सकता हूँ, वो तो मैं इसलिए नहीं गिनवा रहा हूँ कि उनकी भी एक अपनी रिस्पेक्ट है। हाँ वो चलो हम किसी को पर्सनली, लेकिन पर मैं ऐसे ऐसे लड़के को जानता हूँ। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 4 हफ्ते होते हैं महीने में। अब आपका जिम है फॉर एग्जांपल, और मैं आपके जिम में आ रहा हूँ, मैं आपके जिम में 4 दिन आया, तो आप शर्मा शर्मी मुझसे पैसे नहीं मांगोगे कि यार 4 दिन आया, 4 दिन में फीस दे देगा। अब 4 दिन आपके जिम में लगाया मैंने, 4 दिन इसका जिम है, इसके जिम में लगाया, 4 ऐसे करते करते महीना कर लेता है। फिर जैसे ही वो फिर से 4 दिन वापस आते हैं अगले महीने के, फिर वो मेरे जिम में आ जाता है। ऐसे लड़के हमारे भैड़ी शहर में हैं। अच्छा एक चीज और, इन्होंने ना अभी किया है कि एनजीओ में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये हेल्पिंग है ना। तो अभी इन्होंने डाला हुआ था कि किसी को कोई हेल्प हो मेडिसिन के लिए, या किसी की फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं, तो मैं राशन वगैरह वहाँ भेजूँ। तो अभी इनको फोन आया है, कह रहा भैया प्रोटीन की सेवा हो जाएगी। प्रोटीन की, तो फिर प्रोटीन की सेवा भी करोगे आप? अब मैं आपको ये बात भी बता रहा हूँ, देखो प्रोटीन जो है सप्लीमेंट, वो आपकी बेसिक नीड नहीं है। जैसे कपड़ा बेसिक नीड है, छत बेसिक नीड है, और खाना वो बेसिक नीड है। तो उस लड़के का मेरे पास मैसेज आया कि जयदीप भैया क्या प्रोटीन की भी सेवा करोगे? तो अब देखो कहते हैं ना, कोई भी चीज आप स्टार्ट करने चाहते हो तो आपके खींचने वाले भी बहुत आते हैं, पर मैं इन चीजों से पहले से रेडी रहता हूँ कि मेरी खिंचाई होगी। चलो वो तो अलग मैटर है। अब मैं वही है कि अभी अब क्या क्या काम आप जिम के साथ, प्रोटीन वगैरह का भी आपका स्टोर में? भाजी मेरा ऊपर जिम है, बी टाउन जिम। फिर मैंने जिम के 2 साल बाद नीचे ही सप्लीमेंट स्टोर कर लिया, बी टाउन सप्लीमेंट्स नाम से। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ। मेरे शाहजहानपुर के क्लाइंट है पाजी, लेडी क्लाइंट है मेरी, रामपुर के मेरे क्लाइंट हैं, बाकी और भी क्लाइंट है। पर जैसे ये लाइफस्टाइल क्लाइंट है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए मुझसे वो करते हैं, उनको मैं गाइडेंस पूरी देता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो डाइट, जैसे मेरा अभी फैट है, मेरे को भी आपने बताई डाइट, तो आप कैसे डाइट फॉलो खुद करवाते हो, या जिम में बुलवा कर ही करवाते हो, या वैसे किसी को भी आप ऑनलाइन भी डाइट बता देते हो? अब जैसे मैं आपके घर पे आऊंगा, नहीं आपको डाइट क्या चार्ज करते हो आप? भाई मैं अब ऑन डिस्प्ले नहीं बोलूंगा चार्ज क्या करता हूं मैं, पर जैसे अब आप हो, मैं आपका पूरा कैलोरी काउंट करूंगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स निकालूंगा, आप उसकी हिसाब से आपको डाइट दूंगा। पर बेसिक चीज क्या है, लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेनर ने हमारे को डाइट दी, हमारे को रिजल्ट नहीं आया। वो रिजल्ट आप खुद नहीं ला रहे हो, आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे होगे। मुझे अपनी डाइट पे भरोसा है, अब तक मैंने 500 प्लस क्लाइंट निकाल दिए, इनका रिजल्ट है मेरे पास। अच्छा जिम, और एक जिम, चलो जिम भी कह लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज है ना, फिट रहने के लिए कितनी जरूरी है लाइफ में? देखो एक्सरसाइज का तो क्या है, एक्सरसाइज आजकल इतनी जरूरी है, आप देख रहे होंगे कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना, कितना ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। और हार्ट अटैक छोड़ो, लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस है। अब आप ही देख लो आपको कितना स्ट्रेस है, ये फैमिली भी देखनी है, स्टोर भी देखना है, बहुत स्ट्रेस होता है। तो जब हम अपना एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा गुड हार्मोन रिलीज होता है, उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। आप अपने शाम को एक्सरसाइज करिए, आप आए एक्सरसाइज करिए, आपने डाइट ली, सो गए आराम से, सुबह आप आए आपने एक्सरसाइज करिए, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो एक्सरसाइज तो सबके लिए जरूरी है। जैसे मान लो भी कोई ओवरवेट है, मतलब कि 6 फुट का है ना, कोई भी मेल पर्सन हो, तो उसका वेट लगभग कितना फिट माना जाता है? 6 फीट का, ऐसे तो आप 6 फीट का बॉडी मास इंडेक्स से निकलता है, एक हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला होता है। उसमें जैसे हम बॉडी वेट से 24 को मल्टीप्लाई करते थे, वो एक बेनेडिक्ट फॉर्मूला है, वो फीमेल में 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद में एक चार्ट बना होता है कि इसका पूरे दिन में क्या रहता है, दिनचर्या क्या रहती है, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं 1.2, 1.3, 1.4, उसी हिसाब से उसका पूरे दिन का वो निकल जाता है कैलोरीज काउंट। जैसे उसका फॉर एग्जांपल 2500 मेंटेनेंस निकला, तो अगर उसे हमने फैट गिराना है तो हम उसे 2000 पे ले जाएंगे, 500 कट कर देंगे या 300 कट कर देंगे,
तो जैसे भी अगर किसी ने आपके पास आना हो, किसी ने वेट लॉस करना हो या गेन करना हो, उसका कितना वेट कम, आपका मैक्सिमम कितना वेट कम करवाया? आपका रिकॉर्ड तो कोई होगा अब मैं बता रहा हूँ आपको, विद डाइट फुल, है ना? हाँ अभी जी, प्रॉपर अगर किसी ने डाइट, वैसे तो हो ही नहीं सकता, आप जो मर्जी कर लो, अगला कुछ बंदा भी मैं ₹1,00,000 का भी सप्लीमेंट दे दूंगा, लड़का डाइट नहीं करेगा तो उसका नहीं होगा वेट ना लॉस होगा ना गेन होगा। मेरे पास कोई जादुई टैबलेट नहीं है जो मैं उसको खिला के बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा। बड़ा रास्ता यही है हमारी फिटनेस। जवान, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और दूसरी चीज ये है, मेरा एक क्लाइंट है सुमित सुनार, यहाँ पे है बहेड़ी में ही है, वो फेमस है, मतलब वो कारीगर है सोना चांदी के, पूरे बहेड़ी में फेमस है, पूरे मंडल में फेमस है। तो उनका वेट था 117 या 18 केजी वेट था, मेरे पास फोटो भी है। उनका वेट 80 किलो है अभी। 80 किलो अभी वेट इस टाइम 80 किलो है उनका। यार भाजी मैं कल तो तड़ना करदा हाँ, गल यार, मेरा करो फिर। हाँ जरूर जरूर। हाँ। उनका क्या था, वो प्रॉपर डाइट पे रहते थे। और दूसरी चीज, मैं जिम नहीं पहुंच पाता था सुबह, मेरे ट्रेनर जिम खोलता है सुबह, मैं लेट पहुंचता हूँ, वो सुबह 3:30 4 बजे जिम में आए हैं। मेरे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है, वो 3:30 बजे जिम तक आए हैं। कितना टाइम लगाते थे एक्सरसाइज में? वो उनको लगते थे 2 घंटे। हम करते थे, देखो 1 घंटा पूरी कार्डियो करते थे, पोस्ट कार्डियो भी करते थे, प्री कार्डियो भी करते थे, फिर नॉर्मल हम एक्सरसाइज कराते थे, फिर बॉडी पार्ट ट्रेनिंग कराते थे। मतलब कि मान लो ट्रेनर होना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, ट्रेनर होना जरूरी है, ट्रेनर होना जरूरी है, पर उसके साथ में ट्रेनर को नॉलेज होना भी जरूरी है। आजकल कई जिम में क्या हो रहा है, 2 महीने किसी लड़के ने एक्सरसाइज करी, उसको 5,000 रुपए का लालच देकर उसी को जिम में ट्रेनर रख लिया। आजकल ये हो रहा है, तभी गलत गाइडेंस हो रहा है, ये गलत चीजें हैं। अच्छा, मतलब कि प्रॉपर एजुकेशन, बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन होना जरूरी है। खाली बॉडी बना के बॉडी बनाना क्या, बॉडी बनाना, मेरे जिम में कितने लड़के हैं जिनकी बॉडी है पर वो ट्रेनर नहीं बन सकते, ठीक है ना। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹਿੜੀ ਜਾਣਦਾ ਬੀ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੀਮ ਬੀ ਟਾਊਨ वाला। जिवें हुन एक कंपटीशन था अभी बरेली में, अभी रिसेंटली निकला है, जिसमें आपने बोला कि विशाल मेडल लाया है, तो वहां पे एक कोच आया था, बरेली का ही था, अच्छे कोच है, तो वो 14 एथलीट लेके आए थे, बहुत एक्सपीरियंस कोच है। तो मैंने उनको देख के बहुत खुशी हुई, 14 एथलीट। अब आप ही सोचो, आप एक टीचर और आपके 4 से बच्चे गोल्ड मार रहे हैं, तो आपको कितना प्राउड फील होगा। अच्छा, एक तो बॉडी बिल्डिंग होगी, होर तुसीं किहड़े ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 올림픽ਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ weight lifting ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ? ਭਾਈ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆ ਪੰਜਾ ਲੜਾ ਹੈ, पर आजकल जो जिम में सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि कई लोगों का हाथ होता है पतला, कई का मोटा होता है, उसने जोर लगाया तो वहीं उसकी एंकल ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सबसे खतरनाक गेम है आज के टाइम में। चलो, तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास स्टूडेंट तो होंगे, अभी लग रहा है कि आपके पास आगे कुछ फ्यूचर में स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं, या आप पावर लिफ्टिंग कह रहे थे, है ना, पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग कह रहे थे ना? पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, इसमें एसबीडी होता है भाजी। एसबीडी बोले तो स्क्वाट, जो लेग्स की होती है, आपने देखा होगा, आपने भी एक्सरसाइज करी है जिम में। एक बेंच, फ्लैट बेंच, और डी डेड लिफ्ट, ये 3 गेम होते हैं, ये बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं। इनको स्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ता है? भाई देखो लेते तो हैं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, बिगनर नहीं लेते, पर जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और IHF लेवल के जाते हैं लेते हैं भाई। कबड्डी में लेते हैं, अब आपको मैं क्या बताऊं, कबड्डी में लेते हैं स्टेरॉइड। ठीक, हाँ जी। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਡੋਲ TV ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।